Hello students, expansion of East India Company in India. The East India Company started trading in India but failed to establish business center or colony in India. Jahangir granted permission to the company to open business center at Surat in 1613. Sir Thomas Raw was sent as envoy of King James I to India to meet Mughal emperor for trading purpose. Sir Thomas Raw spent his time in Mughal court between 1615 to 1619. He got approval from Jahangir to establish business centers in different parts of the Mughal Empire. And soon British East India Company opened its business center at Surat, Agra, Ahmedabad and Bharuch. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के साथ उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो जो वहां पर उस जो सर थॉमस रॉ था, उन्होंने क्या किया कि 1613 में जहांगीर के शासन काल में उन्होंने सूरत में उनको व्यापार करने के लिए एक स्थान बनाने की अनुमति मिल गई। किंग जेम्स फर्स्ट जो था वो मुगल एम्परर जहांगीर के पास 1615 से लेकर 1619 तक 4 इयर्स रहा और लास्ट में उसे यह अप्रूवल मिल गया कि वह सिर्फ सूरत में ही नहीं बल्कि सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भारूच जैसे कई और अन्य पार्ट्स में भी अपना बिजनेस स्थापित कर सके। When Emperor Charles II of England was married to Princess Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai in dowry. Mumbai came under East India Company for just £10 annual rent. Mumbai was made headquarter of Western Coastal Business Center in 1687 in place of Surat. और इसके बाद जो एम्परर चार्ल्स सेकंड था इंग्लैंड के, जब उनकी 1668 में प्रिंसेस कैथरीन जो पुर्तगाल की थी उनसे मैरिज हुई, तो जैसे कि मुंबई उन्हें एक दहेज के रूप में मिल गया। मुंबई को सिर्फ £10 एनुअल रेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया और इसके बाद से जो सूरत में जो उनका हेडक्वार्टर था बिजनेस का वो उठा करके उन्होंने 1687 में मुंबई में कर दिया। On the eastern coastal areas also the company established business centers at Machilipatnam, Madras, Bengal, Hariharpur, Balasore, Hooghly, Patna and Kasim Bazar. The company made desired benefits in trading in the areas lying between eastern and western coastal areas. The company built forts in Mumbai and Calcutta and made adequate security arrangement there. तो क्या हुआ कि इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो मछलीपट्टनम था, मद्रास था, बंगाल था और बालासोर, हुगली, पटना, ये सारी जगहों पर उन्होंने अपना एक विशाल कहना चाहिए एक सेंटर स्थापित कर लिया। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे भाग थे जहां पर उनको बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त हुई, बिजनेस में उन्हें बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे कंपनी के उन्होंने फोर्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए। मुंबई और कलकत्ता में सिक्योरिटी के तहत, मतलब कि वहां उनकी सिक्योरिटी हो, इसके लिए उन्होंने अच्छे बड़े बड़े किले भी बनवा लिए। In 1717, the East India Company acquired important trading facilities from Mughal Emperor Farooq Siar. John Sermon and William Hamilton paid a courtesy visit to the emperor. The emperor was seriously ill. The emperor got cured after following to the advice of William Hamilton. An elated emperor issued 3 decrees providing a lot of facilities to the company. The company earned the right to trade in Bengal without paying taxes on an annual payment of rupees 3,000. The company was permitted to hire areas near Calcutta. The company's dues were waived off in Hyderabad province. The coins minted by the company in Mumbai were in circulation in the entire Mughal Empire. Thus, the company's business and supremacy increased by leaps and bounds in India.
तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्रुख सियार के साथ जो थे बहुत सारे कहना चाहिए ट्रेड जो फैसिलिटीज थी उनको प्राप्त कर लिया। जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन जब वो उससे मिले, सम्राट से मिले, तो उस समय वो बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रस्त थे। तो विलियम हैमिल्टन ने उनकी हेल्प की और वो उस बीमारी से मुक्त हो गए। तो खुश होकर उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं उनको दे दी। 3000 रुपीज के मतलब एनुअल टैक्स के लिए उन्होंने बंगाल को बिना किसी मतलब सिर्फ 3000 रुपीज पर ईयर लेना था और बंगाल को, कैलकाटा को उन्होंने फ्री कर दिया कि वो वहां पर व्यापार कर सकें। तो इस तरह से उसके जो आसपास के क्षेत्र वहां भी उन्हें फायदा मिल गया, वहां के एरियाज में भी उन्हें व्यापार करने की छूट मिल गई। तो इस तरह से हैदराबाद में भी उनको टैक्स फ्री हो गए वो। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो मुंबई में जो कॉइन्स थे, कॉइन्स का उन्होंने जो कहना चाहिए एक प्रचलन चालू कर दिया कि कॉइन्स चले। इस तरह से भारत में कंपनी का व्यापार बहुत ही कहना चाहिए पावरफुल तरीके से सामने आया।